Hello everyone, so in continuation to ENS Pharma, in this video we are going to deal with anti-adrenergic drugs, specifically beta blockers. So let's start with the video. In the previous one we have already dealt with anti-adrenergic drugs, alpha blockers. If you have not watched already, then please go ahead and watch the alpha blockers first. उसके बाद आप ये lecture देखना, okay? Thank you so much for stay tuning with in this video. In this video specifically we are going to deal with beta blockers, that is generation 1, generation 2 and generation 3. In the generation 1 we have non-selective beta blockers, that is beta 1 and beta 2. In the generation 1 medicine we have non-selective type. जनरेशन 1 नॉन सेलेक्टिव है, मतलब बीटा 1 पे भी वर्क कर सकता है और बीटा 2 पे भी, बीटा 1 एंड बीटा 2. और इसका साइड इफेक्ट बीइंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एज वेल एज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंड थिंग, सबसे पहले हम उन पेशेंट्स में से नहीं देंगे. द कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर Number 1, the patients who are having bronchial asthma as well as COPD patients. Contraindications. Number 1 being bronchial asthma as well as COPD patients. Second being the hypertensive crisis, specifically pheochromocytoma. Hypertensive crisis associated with pheochromocytoma. Third being CAD, that is coronary artery disease, myocardial infarction angina. Or angina patients. Third is the peripheral vascular disease, or also named as Raynaud's disease. Or before the heavy echo or exercise, क्योंकि ये एक्सरसाइज कैपेसिटी को कम कर देता है. सो नेवर यूज इट बिफोर स्ट्रेस इको. एक्सरसाइज कैपेसिटी, यूज इट बिफोर इको. यहाँ पर जितने भी डिजीज़ हैं मोस्टली दे आर कंसर्न विथ लेस अमाउंट और लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पर in the bronchial asthma, of course, furthermore oxygen supply is reduced. In the angina also, in the hypertensive crisis also, somehow oxygen is going to be in deteriorated or compromised state in the patient's body. तो इसलिए हम इन सारे जगहों पर जनरेशन 1 बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करेंगे. दीज आर नॉन सेलेक्टिव, मीन्स बीटा 1 पे भी वर्क करेगा और बीटा 2 पर भी. Let's see the drugs. Over here we have the drug names. Number 1 being propranolol. Number 2 is nadolol. Number 3 being sotalol. And number 4 being timolol. These are the drugs. Indications being where we can use these 4 medicine. Indications are non-serious indications. First of all, non-serious indications. Propranolol is
can take entry in the CNS. That's why it's the and block the beta 1 receptors. तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है ये. Propranolol can take CNS entry and can block the beta 1 receptors. So it is a beta 1 blocker over here. So it is a drug of choice for number 1, performance anxiety. Essential tremors, inner restlessness, also named as akathisia, which is inner restlessness. Number 4 being in the drug withdrawal syndrome, it is not a very good choice. So I'm writing it over here. In the drug withdrawal syndrome, it is not a very good choice over here, not a drug of choice. Second being is the vasoconstriction. Okay, so I have already told you कि ये vasoconstriction कराता है. तो मेडिसिन कौन कौन सा होगा और कहाँ पर vasoconstriction करेगा. तो next role of beta 1 and beta 2 blockers are vasoconstriction. Drug of choice for migraine prophylaxis. The medicine name is propranolol again. Second one is congenital hemangioma. Medicines are propranolol along with both will be given separately, propranolol and timolol in the congenital hemangioma. Third being the esophageal varices prophylaxis. Fourth being ciliary body of eye. Ciliary body of eye में यहाँ पर beta 1 as well as beta 2 दोनों ही ब्लॉक करेगा. ठीक है, beta 1 and beta 2 blocker both. So these are the drugs. In the ciliary body of eye, it is responsible for the decrement of synthesis of aqueous humor synthesis. आई ड्रॉप्स टेमोलॉल के नाम से भी आता है मार्केट में. तो टेमोलॉल आई ड्रॉप्स, अगेन साइड इफ़ेक्ट तो कुछ ना कुछ होएगा ही. यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट बीइंग specifically A, B, C, D with the mnemonic you can learn. A, B, C, D, where A stands for allergy in the eyes, specifically known as allergenic blepharoconjunctivitis. Second is the burning sensation, may cause burning sensation. Fourth is decrement of corneal sensitivity. Fifth being the dryness of eyes or the punctum blockage or eye duct blockage.
basically nasolacrimal duct. Let's move on to the generation 2 medicine. So we have already learned about the generation 1. Let's move on to generation 2 medicines. Before going ahead, I have to tell you one more medicine for the esophageal varices. There will be lot of medicine that will going to work in the esophageal varices prophylaxis. Generation 1 medicine will going to help in this. Let's revise it before going ahead. For the migraine prophylaxis, primarily we'll use propranolol, and for the congenital hemangioma we'll use propranolol and sotalol. For the esophageal varices, we'll use all the above three medicines: propranolol, notalol, and sotalol. Ciliary body of eye may will use timolol eye drops, and side effect being these for specifically the ciliary body of eyes. Okay. Next up is the generation 2 beta blockers. Okay. What are these? Generation 2 beta blockers. These are actually cardio selective होता है नेचर में ये. These are very cardio selective in nature. Mostly they are beta 1 blockers. Drugs का नाम आप याद कर सकते हो with the mnemonic name being BEAM. BEAM is betaxolol, esmolol, atenolol, and metoprolol. Okay. Next one is the generation 3 medicine. Generation 3 medicine will going to further work in the vasodilation purpose. Further going to do decrement of BP. Number 1 medicine being labetalol. Number 2 is nebivolol. Number 3 being carvedilol. For learning their functions, we have very good mnemonic over here. सबसे पहला मेडिसिन जो है वो है लेबिटालॉल अल्फ़ा ब्लॉकर भी है एज वेल एज बीटा भी है, बीटा ब्लॉकर. नेविबिलॉल ओनली बीटा ब्लॉकर होता है और ये एज द नेम से इट स्टार्ट्स विथ एन. तो नेविबोलॉल my mistake. Nebivolol is specifically nitric oxide stimulator. तो नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज कराएगा फर्दर. एंड कार्वेडिलॉल has 4 functions with 2A. Car has 4 wheels. So its function is also 4. A, B, C. With A we have alpha blocker, with B we have beta blocker, again with A we have antioxidant property, and with C we have calcium blocker property. Next one is the side effect. What are its side effect? Let's dive into the topic. Very important thing are the side effects of
beta 1 blockers. They are actually cardiodepressive in nature. Very important again. Cardiodepressive in nature. तो इसलिए ये क्या करेगा? नंबर 1, हार्ट रेट को कम कर देगा, कंडक्शन को कम करेगा, या कार्डियक आउटपुट आप लिख लो, कार्डियक आउटपुट CO को कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, या फिर कार्डियक आउटपुट को कम करेगा. सेकेंड बीइंग कंडक्शन को कम करेगा और हार्ट में BP को कम करेगा. ब्लड प्रेशर विल गोइंग टू बी इन द डेटोरेटेड स्टेज or in the compromised state. It is contraindicatory in, these drugs are contraindicatory in hypotensive shock. जब एक्सट्रीमली लो BP हो जाए तो हम इसे नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कार्डियोडिप्रेसिव प्रॉपर्टी इट हैज़ गॉट, क्योंकि इट विल फर्दर गोइंग टू बी डिक्रीज BP as well as helps in bradycardia, कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं देंगे, एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं देंगे, पार्शियल हार्ट ब्लॉक विथ पेरिफेरल रेजिस्टेंस बीइंग मोर देन 0.24 m per second, partial heart blockage with peripheral resistance interval, peripheral interval being more than 0.24 millisecond. नेक्स्ट वन, तो वेयर वी कैन गिव दीज मेडिसिन्स, हाइपरटेंशन क्राइसिस जब हो जाए तब हम देंगे इन्हें. हाइपरटेंशन नॉट हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन. इंडिकेशंस बीइंग नंबर 1, हाइपरटेंशन, ड्रग्स आर लेबिटालॉल. इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. Esmolol is the second drug of choice for aortic dissection associated with hypertensive crisis. Secondly, it is the first line drug for, can be used as the first line drug for classical angina. क्लासिकल एंजाइना में क्या होता है? हार्ट रेट कम और ऑक्सीजन डिमांड को भी कम कर देगा. मतलब कैसे वर्क करेगा? हार्ट रेट को कम करके ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा, एंड फर्दर गोइंग टू बी द पेशेंट विल फील रिलीफ विद दिस पर्टिकुलर मेडिसिन. नेक्स्ट वन इज it is a first line drug for myocardial infarction or maintenance treatment of myocardial infarction के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या करेगा? ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा. फोर्थ बीइंग ड्रग ऑफ चॉइस फॉर HOCM. यहाँ पर डिक्रीज कर देगा द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड फर्दर इट विल गोइंग टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. फोर्थ इज can be used as a first line drug for maintenance treatment of congestive heart failure also. First line drug for maintenance treatment of congestive heart failure. It has got two routes.
So it is a first line drug for the maintenance treatment of RX means treatment of congestive heart failure. Congestive heart failure. Also यहाँ पर ये क्या कर रहा है congestive heart failure में? In the congestive heart failure it has got two roles. पहला रोल है टू प्रिवेंट टेकीकार्डिया, ज़्यादा हार्ट रेट ना हो जाए, तो इसलिए इट हैज़ गॉट टू रोल्स. एंड सेकेंड बिंग टू प्रिवेंट रीमॉडलिंग. इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं आईने में और आगे भी एक्सपेक्टेड हैं ऑफ कोर्स. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है? विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन मैंने बताया था मोर देन 60 होता है नॉर्मल पर्सन का. कॉम्प्रोमाइज़ में लेस देन 35 to 40 हो जाता है. विद एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. कार्डियक आउटपुट एक्सट्रीमली लो. नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 40%. यहाँ पर ब्लड सप्लाई एक्सट्रीमली डेटोरेटेड स्टेज पे चला जाता है. ठीक है. CO मतलब ऑब्वियसली लेस देन नॉर्मल हो जाता है. इट इज़ लेस देन नॉर्मल. तो क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है ऑर्गन्स में, तो हम देखते हैं कि इसका क्या रोल बॉडी में होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी में और क्या रोल है कहाँ पर. तो डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन्स, नंबर इट हैज़ गॉट टू रोल्स अगेन. दो चीज़ें होंगी बॉडी में. पहला चीज़ CNS वर्क करेगा, सिंपैथेटिक वाला. स्ट्रेस का स्टेज आ गया ना, तो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म CNS will going to act. एंड सेकेंडली रीनल ब्लड फ्लो, किडनी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो रीनल ब्लड फ्लो एक्सट्रीमली कम हो जाता है. CNS sympathetic going to be work as a compensatory mechanism, and thus noradrenaline and norepinephrine is going to release. Furthermore बीटा ब्लॉकर पे काम करेगा. बीटा 1 इंक्रीज़ कराएगा. मैंने जैसा कि बताया था कि बीटा 1 CNS ऑलरेडी बॉडी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी. बीटा 1 फर्दर हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराता है, तो इसलिए इंक्रीज़ हो जाता है क्या? इजेक्शन फ्रैक्शन. क्योंकि अभी कॉम्प्रोमाइज स्टेज में है इजेक्शन फ्रैक्शन. ड्यू टू दिस रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट रेट इज़ मोर, टैकीकार्डिया अगेन. इसके वजह से डायस्टोलिक, हार्ट रेट जब ज़्यादा होगा तो डायस्टोलिक ड्यूरेशन कम हो जाता है. एज यू ऑल गाइज नो, डायस्टोलिक ड्यूरेशन विल गोइंग टू बी इन द डेटोरेटेड और कॉम्प्रोमाइज स्टेट. फर्दरमोर इसके वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा. कोरोनरी ब्लड फ्लो का मतलब क्या? हार्ट को जो सप्लाई हो रहा है, हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई होगा ना, तो वो कम हो जाएगा. ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ to the heart will go into in compromised state, and cardiac output again come, further ejection fraction कम. ओवरऑल मोर्टेलिटी कम हो जाता है, बट सर्वाइवल ज़्यादा हो जाता है विद बीटा ब्लॉकर्स. ओवरऑल मोर्टेलिटी going to be in decrease and सर्वाइवल हैंस बढ़ जाएगा विथ बीटा ब्लॉकर्स. ओके. और यहाँ पर बेस्ट बीटा ब्लॉकर जो हम लोग देंगे, बेस्ट बीटा ब्लॉकर इज कार्वेडिलॉल विथ
4 mechanisms. मैंने अभी बताया था कार से, कार हैज़ 4 wheels. Carvedilol is the medicine, and of course the dose should not be high. The dose should not be high. Next thing we have to see second mechanism, जो रास एक्टिवेट होता है वो कैसे होगा. रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई है नहीं, तो किडनी में भी ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं. ठीक है, तो रीनल ब्लड फ्लो विल बी इन कॉम्प्रोमाइज स्टेट. रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, तो GFR भी कम हो जाएगा. ब्लड सप्लाई या फ्लो आप लिख लो. तो इसके वजह से GFR कम हो जाएगा. GFR कम हो जाएगा तो JG सेल्स सेक्रीट करने लगेगा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिल सेक्रीट करेगा, और रेनिन फिर रास मैकेनिज्म कंट्रोल करेगा. रास के वजह से क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा. एल्डोस्टेरॉन विल गोइंग टू इंक्रीज. एल्डोस्टेरॉन जब इंक्रीज हो जाता है रास में, रास क्या होता है, रास का फुल फॉर्म, रास इज द रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. इसका नाम ही यही है. तो इंक्रीज क्या कराएगा, एल्डोस्टेरॉन. ओके, एल्डोस्टेरॉन. फर्दर कार्डियक मसल में हाइपरट्रॉफी होगी. हाइपरट्रॉफी आगे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा. हाइपरट्रॉफी होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा. कैसे होगा वो भी हम देखेंगे डायग्राम से भी. एंड इजेक्शन फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा. अब जो होगी चीज़ें वो इरिवर्सिबल होती है. दैट इज पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग विल गोइंग टू हैपन, जिसके वजह से चेम्बर वॉल्यूम कम हो जाएगा. हार्ट का चेम्बर वॉल्यूम कम हो जाएगा. एंड देन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. EDV कम, कार्डियक आउटपुट कम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम. और फर्दर अब क्या होगा, चेंज इन शेप ऑफ हार्ट, क्योंकि पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग इरिवर्सिबल होता है. ठीक है, पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग हमेशा याद रखना, ये अगर हो गया एक बार बॉडी में तो ये इरिवर्सिबल होता है. सेकेंड थिंग, जब हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो इसका सबसे अच्छा बात यही है कि बीटा ब्लॉकर्स विल गोइंग टू reduce tachycardia as well as cardiac revolting. Suppose we have got heart over here. एक बहुत ही इजी सा डायग्राम बनाते हैं. We have got 2 valves. ये हमारा हार्ट है जो एक नॉर्मल कंडीशन में है. ये डायग्राम थोड़ा रफ सा बना रही हूँ मैं, जस्ट फॉर वन क्लैरिफिकेशन. यहाँ पर वी हैव गॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये राइट एट्रियम होता है. ठीक है, वी हैव गॉट राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इधर होता है बाइकस्पिड. और ये राइट वेंट्रिकल है.
अगर हम ध्यान से देखें इसकी फिजियोलॉजी तो आप देख पाओगे कि जो हार्ट है वो कुछ इस तरह का है, ऐसा होता है शेप में, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। बट जब रीमॉडल्ड हार्ट होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली एक्शन हो रहा है, नॉर्मल ड्यूरेशन, डायस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक वॉल्यूम सब नॉर्मल है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट आई एम गोना मेक वन थिंग ओवर हियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर हम बाइफरकेट कर दें, ठीक है, दिस इज आवर हार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज़ें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। बट जो कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट कुछ इस टाइप का होता है ना। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मैं एक हाईलाइट कर रही हूँ, ये आप देखो, ये सेप्टम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देखो, ये जो सेप्टम है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मतलब सेप्टा जो है यहाँ पर काफ़ी रीमॉडल्ड हो जाता है। इतना सारा स्पेस जो लेफ्ट वेंट्रिकल का है वो ख़त्म हो जाता है, दिस स्पेस ओवर हियर, और ये तो हमारा था ही। ये हमारा राइट एट्रियम है, उधर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल का पार्ट सिर्फ इतना ही बच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, अगर आप देखो तो ध्यान से। लेफ्ट एट्रियम वैसा ही है बट वेंट्रिकल काफ़ी मिनिमाइज्ड हो जाता है साइज़ में। मैं अच्छे से क्लैरिफाई कराती हूँ अभी, एक बार वापस रिकॉल करा के। यहाँ पर वी हैव गॉट दिस, और आप देखो कि कितना ज़्यादा स्पेस कवर करा इसने, ठीक है। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, बस इतना सा, और ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, यस। बट आप देखो ये स्पेस जो है वो इतना से इतना मिनिमाइज़ हो चुका है अब, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा यहाँ था, अब ये स्पेस इतना से ज़्यादा इतना मिनिमाइज़ हो चुका है, ध्यान से देखो, सिर्फ इतना रह गया है। तो ये हमारा क्या है, रीमॉडल्ड हार्ट। अगर हम एंगुलेशन देखें, जो कि एक थोड़ा फिज़िक्स लगाते हैं, तो आप देखो इसका जो एंगुलेशन है वो कुछ ऐसा सा होता है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेस देखो कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर रीमॉडल हो गया है, ठीक है। चेंज इन शेप ऑफ हार्ट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अप इज़ द सम फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स।
very important again of बीटा ब्लॉकर्स. दो मेडिसिन यहाँ पर लेंगे, एस्मोलॉल मेनली और नोडालॉल सोटालॉल, ये एक कैटेगरी का है. एस्मोलॉल और सेकेंडली वी हैव गॉट नेडोलॉल विच इज़ मोर प्रोमिनेंटली यूज, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज होता है. लॉन्गेस्ट एक्टिंग इज़ नेडोलॉल. एंड एस्मोलॉल में आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है एस्टर बॉन्ड. एस्मोलॉल हैज़ गॉट एस्टर बॉन्ड. सेकेंडली वी हैव गॉट वन RBC's esterase enzyme that will going to be act for its metabolism. तो एस्मोलॉल is metabolized by one enzyme named as RBC esterase. RBC esterase की वजह से ये मेटाबोलाइज होगा. सेकेंड थिंग, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर with action being 8 to 10 minutes. अब एलिमिनेशन, जिस पे बहुत बार PYQ आ गया है एंड आगे भी फर्दर एक्सपेक्टेड है. chronic kidney disease, if the patient is having chronic kidney disease or chronic liver disease, मोस्टली दो तरीके के पेशेंट होते हैं. तो अगर एलिमिनेशन है, तो अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो वहाँ पर हम रिड्यूस कर देंगे डोजेज ऑफ फॉलोइंग मेडिसिन. इफ द पेशेंट इज हैविंग क्रॉनिक किडनी डिजीज तो वहाँ पर एटीनोलॉल, नेडोलॉल और सोटालॉल इसको डिक्रीज कर देंगे. और अगर क्रॉनिक लीवर डिजीज है तो वहाँ पर LMP, डैट इज़ लेबिटालॉल, मीटोप्रोलॉल एंड प्रोपेनोनॉल. लेबिटालॉल, मीटोप्रोलॉल एंड प्रोपेनोनॉल को फर्दर रिड्यूस कर देंगे डोजेस को. ओके, सो दीज वेर द फ्यू मेडिसिन्स जिसका एलिमिनेशन, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो लीवर से एलिमिनेशन होगा, तो उस टाइम पे ये डोज को रिड्यूस करना है. कौन किसी मेडिसिन है किडनी में? एटीनोलॉल, नेडोलॉल और सोटालॉल. क्रॉनिक लीवर डिजीज. So guys, in this video we have learned about various drugs, that is basically the anti-adrenergic drug beta blocker we have covered. So let's revise it a bit so that you can retain this topic much better. First of all, what are anti-adrenergic drugs? We have already dealt with it in the previous lecture. In this video we have dealt about beta blockers, जनरेशन 1, 2 एंड 3. वाटर जनरेशन 1 मेडिसिन सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव होता है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे वर्क करेगा. साइड इफेक्ट है इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. कॉन्ट्रा इंडिकेटरी ब्रोंकियल एस्मा पेशेंट्स में, COPD पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव क्राइसिस एसोसिएटेड विद फियोक्रोमोसाइटोमा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना, basically in the coronary artery disease we will not recommend these medicines. Raynaud's disease, peripheral vascular disease, exercise capacity को reduce करता है, it will be never used before the stress echo. Next are the drugs. We have dealt about propranolol, nadolol, sotalol and the timolols. Indications, non-serious indications होता है इसका. Propranolol can take entry in the CNS, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी होता है मोस्ट ऑफ द जगहों पे. आप देखोगे कि परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है. एंड सेकंड बीइंग द एक्स्थेसिया, इनर रेस्टलेसनेस, अगर वो अंदर से थकान लगे तो हम यूज़ कर सकते हैं. ड्रग विदड्रॉल सिंड्रोम में इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ड्रग ऑफ चॉइस ओवर हियर, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे. ओके. Second thing is the drug of choice for since these medicine have got vasoconstriction properties, तो ये माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में भी यूज़ होगा,
कंजेनाइटल हेमेंजियोमा में यूज़ होगा। वाटर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, दिस रिफर्स टू मतलब प्रोपेनोल का यूज़ करेंगे माइग्रेन्स में। बेसिकली माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस का ही फैंसी नेम है, माइग्रेन्स का ही प्रोफाइलेक्सिस इज़ द फैंसी नेम ऑफ माइग्रेन ओनली। सेकेंड थिंग इज कंजेनाइटल हेमेंजियोमा, जहाँ पर हम लोग प्रोपेनोल और टीमोलॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंजेनाइटल हेमेंजियोमा है, व्हाट आर दीज आर द benign vascular tumors that are present at the time of birth. ठीक है, these are, we shall write it over here, benign vascular tumors present at the time of birth. Second thing, in the esophageal varices prophylaxis, what medicines do we use? The medicine's name is propranolol, nadolol and sotalol. These were the medicines that we can use in this. ईसोफेजियल वेराइसिस प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग बेसिकली जब इनलार्ज वेंस के वजह से हो जाए तो उसे ही कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मली इनलार्ज वेंस हो जाता है तो इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है वेराइसिस की, तो उसे हम ईसोफेजियल वेराइसिस प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। सिलेरी बॉडी ऑफ आई में हम लोग बेसिकली टीमोलॉल रेफर करते हैं। हमने बताया था ABCD के नाम से इसका साइड इफेक्ट है, दैट इज एलर्जी, बर्निंग सेंसेशन, कॉलिन सेंसिटिविटी एंड ड्राइनेस ऑफ द आइज और डक्ट ब्लॉकेज। बेसिकली द nasal duct and duct blockage will be seen over here. Sometimes if we give these medicines, generation 2 are the cardio-selective beta blockers, beta 1 blocker. Drugs names are betaxolol, esmolol, atenolol and metoprolol. Generation 3 being number 1 labetalol, नेविबिलॉल एंड कार्बिडिलॉल। जनरेशन 3 वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, आप हमेशा याद रखना ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, बीटा 1 और बीटा 2 जो नॉन सेलेक्टिव वाला था। यहाँ पर जो जनरेशन 3 है वो क्या कर रहा है? वैसो डायलेशन कर रहा है। लेबिटालॉल अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों, नेविबिलॉल बीटा ब्लॉकर नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करता है। कार्बिडिलॉल अल्फा ब्लॉकर्स अगेन एंटीऑक्सीडेंट, कैन बी यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट and it is a beta blocker as well as alpha blocker. Along with it can block calcium also. Next up is the side effect of beta 1 blocker. Cardiodepressive in nature, हार्ट रेट को कम करेगा, कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, कंडक्शन को कम करेगा और बीपी को भी कम करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेटरी इन द पेशेंट्स हैविंग ब्रेडिकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक, acute heart failure, partial heart blockage with compromised with more than 0.24 milliseconds peripheral resistance interval, PR not peripheral resistance interval, the waves interval that is PQRST wave होता है ना हार्ट बीट में, वो वाला PR इंटरवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 0.24। इंडिकेशंस आर हाइपरटेंशन में इसे देंगे, लेबिटालॉल ड्रग इंड्यूस्ड, प्रेगनेंसी में जो ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा वहाँ देंगे, एंड एजमोलॉल ऑर्टिक डिसेक्शन विथ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियल मायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहा है और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है। एरिथमिया में देंगे, ठीक है, इन द एरिथमिया वी विल गिव दीज मेडिसिन्स। एरिथमिया मतलब क्या होता है? जहाँ पर एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो, ठीक है, वेयर द हार्ट बीट्स टू फास्ट और टू स्लो और इन द इरेगुलर पैटर्न, दैट इज़ वॉट वी टर्म्ड एज एरिथमिया। एरिथमिया में भी सुप्रावेंट्रिकुलर टाइप। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जहाँ पर इट विल प्रिवेंट टेकीकार्डिया एंड प्रिवेंट कार्डियक रीमॉडलिंग। कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? कार्बिडिलॉल। हमने देखा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में
ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक कैसे करेगा एक्टिवेट, नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ करेगा, फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा, बीटा 1 पे एक्ट करके हार्ट रेट बढ़ाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाएगा, टेकीकार्डिया करेगा, डायस्टोलिक ड्यूरेशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो काफ़ी हार्ट बीट फास्ट करेगा, जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अगेन कम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम। ठीक है, ओवरऑल मोर्टेलिटी कम हो जाता है, सर्वाइवल ज़्यादा होता है विद द बीटा ब्लॉकर्स, नेमली कार्बिडिलॉल। यहाँ पर ड्रग काफ़ी ज़्यादा हम नहीं करेंगे, याद रखना ये चीज़। सेकेंड थिंग इज रीनल ब्लड फ्लो को कम करके जीएफआर कम करेगा, जिसकी वजह से जेजी सेल रेनिन सेक्रीट करेगा, रेनिन से रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन सेक्रीट होगा, एंड देन कार्डियक मसल्स में हाइपरट्रोफी होगी, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एंड इंजेक्शन फ्रैक्शन, जिसकी वजह से हम पैथोलॉजिकल, बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग हो रही है, हमें अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट और इंजेक्शन फ्रैक्शन को कम करना है। तो इंडास्ट्रियलिक वॉल्यूम कम होगा, which is a very star point over here, and diastolic volume will be reduced. ठीक है, change in the shape of heart. Beta blockers is given to will going to increase the heartbeat as well as will going to decrease the heartbeat, reduce trachycardia, means हार्ट रेट कम हो जाएगा, और कार्डियक रिमॉडलिंग को भी रिड्यूस करता है। सेकेंड थिंग इज़ द एक्शन, हमने देखा था रिमॉडल्ड हार्ट कैसा है, यहाँ पर एक्सट्रीमली कम स्पेस बचता है फॉर द, क्योंकि सारा सेप्टा इसको कवर अप कर लिया है, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग हो गई है यहाँ पर। सेकेंड थिंग इज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, एजमोलॉल सबसे कम एक्टिंग शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स है, जहाँ पर एजमोलॉल आरबीसी एस्टरेज एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज होगा। शॉर्टेस्ट एक्टिंग, action will be long lasting up to 8 to 10 minutes. Nadolol is the longest acting, followed by sotalol. Okay, second thing, elimination, where there is chronic kidney disease, so we'll reduce drugs like atenolol, nadolol and sotalol. Where there is liver, chronic liver disease, जहाँ पर लिवर डिजीज़ होगा तो वहाँ पर किडनी के द्वारा मेटाबॉलिज्म होगा, तो वहाँ पर हम लोग ये सारे ड्रग्स का लीवर डिजीज़ में और ये सारे ड्रग्स किडनी डिजीज़ में डोजेस कम कर देते हैं। लीवर में एलएमपी, एल से लीवर, एल से एलएमपी, लेबिटालॉल, मेटोप्रोलॉल एंड प्रोपेनोल। विथ एएनएस विल लर्न क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जहाँ पर रिडक्शन करेंगे हम इन सारे मेडिसिन के डोजेस का, एटिनोल, निडोलॉल एंड सोटालॉल। And we came to an end of this lecture. In the furthermore lecture, we'll see the last series of ANS Pharma, where we'll see anti-glaucoma drugs. That is a very short topic. Furthermore, we'll see kidney drugs, respiratory drugs, CNS drugs, and much more. So just stay tuned for this series and keep subscribing to my channel. Thank you so much for watching.